Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the lecture number 2 on PHP MySQL. In the last lecture, you saw how to install WAM server and then how to run your first program on the WAM server. So in this lecture, we are going to explore some more topics in PHP. So in this lecture, I am going to cover the PHP variables, how to create PHP variables, and then how to assign values to different PHP variables. So let's see first कि हम चूँकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है variables के बारे में and different languages like C, C++. So here you won't face any problem in using PHP variables. You can see on the screen in PHP a variable starts with the dollar sign. ये चूँकि आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं. So I won't go into much details. But let's see on the screen that a PHP variable starts with the dollar symbol, and it is followed by the alpha numeric value. So here are some rules I will show you कि आप किस तरह जो है ना एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग दैट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द डॉलर symbol. Okay, now let me show you some rules of how to uh, declare PHP variables. So a variable can have a short name like x, y, or more descriptive name like car name, total, volume. ठीक है, तो नाम जो है वेरिएबल का वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी हो सकता है लेंथ में, और ये एक ही अल्फ़ाबेटिक लेटर भी हो सकता है. A variable, ये रूल्स पढ़ लें PHP वेरिएबल्स के. A variable starts with the dollar sign, okay, and then followed by the name of the variable. Variable name must start with a letter or underscore. ठीक है, तो तकरीबन ये C++ के अंदर भी यही रूल है कि एक जो वेरिएबल है ये लेटर से स्टार्ट होगा या एक अंडरस्कोर जो है इसे इसका स्टार्टिंग इसकी होगी. वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर. सो कैन नॉट को थोड़ा सा मैं करूँगा हाईलाइट सो दैट यू रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, कि आप इसको एक नंबर से जो है ना स्टार्ट नहीं कर सकते. वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. ठीक है, यानी A to Z या 0 to 9 कोई भी आप अंडरस्कोर इसमें जो है ना फिर ऑनवर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी dollar age and dollar age in uppercase, they are different variable names. Okay, so remember these points. Output a variable. PHP uses echo statement to print the output of a variable on the screen. इनके अलावा we can also use another command that is print statement. तो इन दोनों का इंशाल्लाह अभी जो है इस लेक्चर के एंड पे I will give you a practical demo of how to use both these echo and print commands. Okay, here is a example like a dollar txt is the variable name, and they have assigned a string to this variable. So it means that you can store a string or a value or float value to this kind of variables. You do not need to mention the data type like integer, float, etc. बिल्कुल आप मेंशन ना करें इसके टाइप, because PHP is a loosely typed language, यानी इसमें आप टाइप को मेंशन नहीं करते किसी भी वेरिएबल का. It can store any form of value, whether string, integer, or float. Okay, and here this is the echo command. It is used for output something on the screen. ठीक, so इनके अलावा is another example. Here you can see I love dot this variable dot this string again. Okay, यानी आप जब भी किसी भी दो strings को आपस में concatenate करेंगे, so use the dot symbol here. Okay, इस तरह इनके अलावा you can also use some calculations like arithmetic operators plus minus etc. You can use them here. PHP is a loosely typed language. ठीक है,
you do not mention the type of the variable. Okay, अच्छा इसके ऊपर बात करेंगे, but let me first run a program how to declare a variable and how to follow these rules of declaring a variable. Okay, so dear students, you can see here, as you know, we are using the notepad plus plus tool for using or executing PHP programs. So let me start. Okay, PHP, as you know, it is starting, okay, and ending with these symbols. Okay, let me declare a variable like a is equal to 10. Okay, another variable b is equal to 20.5. $C is equal to a string Pakistan. Okay, पाकिस्तान मैंने यहाँ पे प्रिंट किया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लूजली टाइप, यानी वेरिएबल एक ही है, एक ही तरह का है, और हम इसके अंदर इंटीजर, फ्लोट या कोई भी स्ट्रिंग इसमें हम सेव कर सकते हैं. जिस तरह मैंने बताया कि echo कमांड इज यूज फॉर आउटपुट, सो यू कैन echo this variable like well, you can also print it like this, dollar a. This is also correct. Okay, uh, and if you echo it with the dollar, this is the value. Mhm, the value of variable b is equal to dot dollar b. Okay, second echo, third जो है string है, so if you write directly like this, uh, okay, the string is equal to dot dollar C. Okay, so let me execute this program to see whether uh, our code is correct or not. This was our second program, so let me replace this statement. Okay, this program is already saved with the name php.1. Here you can see, but let me save as it, and you will also see कि हम इसको सेव कहाँ पे करते हैं. Hope you remember the last lecture. Save as, go to, well, this is the www folder. ये कहाँ पे था? Again let me remind you कि आप करेंगे क्या कि C ड्राइव के अंदर जाएं, वहाँ पे वैम का फोल्डर होगा, वैम 64 का फोल्डर यहाँ पे जो मैंने इंस्टॉल किया था उसमें जाएं, यहाँ पे है www फोल्डर, यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे आपका जो प्रीवियस प्रोग्राम था php1 के नाम से वो भी सेव्ड है, बट यू कैन सेव एज this program with the php2. Okay, so this is our second program, and if I save this with the name php2 slash variables. Okay, okay, अच्छा, सेव करने के बाद इफ़ यू रिमेंबर हम करेंगे क्या कि वैम्प को सर्वर को आप जो है ना वो स्टार्ट कर दें. ओके, एंड यू विल सी द आइकन हेयर. यस, ये देखें अपेयर हो गया, जो कि रेड फॉन्ट्स में है. नाउ इट विल स्टार्ट when it turns to the green. Okay, yes, it is now green. That shows that the web server is running successfully. Okay, इसके ऊपर जो है आप क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद यू विल रन द लोकल होस्ट, क्योंकि हमारे पास ये लोकल प्रोग्राम है, लोकल सर्वर पे रन होगा अपाची के। सो क्लिक करने के बाद this is the Apache server and here you can see localhost slash, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था, php v1 was the previous, and you can type here php 2. Okay, the web page cannot be found. Whether is there is any error? Let me check it. Okay, the error is that its name was php2 dash variables. Okay, ये देखें, php2 dash variable is the file name, और इसमें जो ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करूँगा बिकॉज ताकि इसका जो डिस्प्ले फॉर्मेट है इट्स नॉट दैट मच गुड। इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी मैं इंक्रीज कर दूँगा यहाँ पे। आफ्टर दिस लेट मी पुट break here and one here so that it moves to the next line पे आने के बाद now save this program and go to the browser and refresh this. Okay, so this was your output. ठीक, अच्छा फॉन्ट जो है किस तरह इंक्रीज करेंगे, अगर आपको HTML के टैग्स याद हों, so why not apply it here, font slash size is equal to, well, single quotes and 16. Okay, now let me close this, इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, and you can see that it's working, font size 16. And why not close this font here, well 16 is too big, let me make it 12. Okay, and you can apply, okay, I should close the font here, and well, okay, one should be here and one, इसको कॉपी कर दे, चले इसको मैंने कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे इस फॉन्ट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल में वाई नॉट, अच्छा इसके ऊपर अप्लाई चले नहीं करते, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो लेटर जो दूसरा वाला है सेकंड वाला, मैं क्यों ना इसका कलर भी हम चेंज करें, फॉन्ट का कलर इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में जाएं और इसको करें रेड। ओके, सेव किया, जाके इसको करें रिफ्रेश, एंड यू कैन सी 10 के ऊपर हमने फॉन्ट को अप्लाई नहीं किया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज दिस एंड द स्ट्रिंग इज पाकिस्तान। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद द वेरिएबल्स। अच्छा, एक और पॉइंट की तरफ हम आते हैं, हमने यहाँ पे कुछ रूल्स अभी पढ़ी थी कि वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर सिंबल एंड द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर भी हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। सो और इनके अलावा मतलब डॉलर सिंबल से स्टार्ट करने के बाद यू कैन इंसर्ट एनी वन फ्रॉम दीज थ्री ऑप्शंस। सो अगर मैं इसका नाम इस तरह रखूं कि डॉलर सिंबल अंडरस्कोर ए, सो is it a correct name, we will see it, we will also change it here। इनके अलावा डॉलर सिंबल है B9, ठीक, इस तरह C अंडरस्कोर 4, ठीक है।
इसका भी चेंज कर दें, B9 कर दें इसको, और इसको C_4 कर दें। तो ये मैंने जस्ट वेरिएबल्स नेम में थोड़ा सा चेंज किया है। सो लेट्स सी कि ये जो नाम है, ये तीनों जो वेरिएबल नेम्स है, आर दे करेक्ट और नॉट। I am going to refresh this point. Okay, so it is running successfully again. But if I start this symbol with the dollar symbol dash a, dollar symbol dash a, and if I save this program and again run this program, uh, I got an error message. So you should keep these rules. Control Z करें इसको ताकि ये सही हो जाए। Okay, so students remember these points, because आगे जब आप PHP पढ़ेंगे so you uh, shouldn't face these problems. Okay, अच्छा, this was the variable rules. आउटपुट आपने एग्जांपल देखा, echo कमांड मैंने इसको जो है ना रन किया। डॉट का आपने देखा कि किस तरह जो है ना वो दो स्ट्रिंग्स को, इनको और इसको, वैल्यू और स्ट्रिंग को आपस में ये कॉन्कैटिनेट करता है। PHP is a loosely typed language. By loosely we means कि इसके साथ हम जो है टाइप डेटा का मेंशन नहीं करते, like integer, float and string. And you can see in this example we didn't write any type of the data here with these variables. ठीक है, any variable name का format तकरीबन बल्कि सेम ही होगा despite the difference in variable names. Okay, so this was another point. And इसके अलावा PHP वेरिएबल का स्कोप की हम बात करेंगे। तो स्कोप जो है, इतना बता दूं स्कोप के बारे में कि वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। जब PHP का आप प्रोग्राम लिखेंगे तो स्क्रिप्ट आप कहीं पे भी जो है ना वो दे सकते हैं। लाइक you already knew okay, the scope of variable is the part of the script where the variable can be referenced used. Okay, 3 हमारे पास इसके टाइप्स हो सकते हैं स्कोप्स के। the one is local, global and static. So these are the 3 scopes. Okay, लोकल जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के बॉडी के अंदर, तो उसे हम लोकल कहते हैं। ग्लोबल मीन्स व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बिफोर द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन, सो हम इनको फिर ग्लोबल कह सकते हैं, कहते हैं। स्टैटिक जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम फिर चेंज नहीं कर सकते, इसे हम फिर कहते हैं static variable. So first have a glance on the difference between global and local scope of the variable, क्योंकि आगे हम जाके जब PHP functions पढ़ेंगे तो हम इनको जो है ना प्रैक्टिकली रन भी करेंगे, इनके स्कोप्स को हम पढ़ेंगे भी। इस एग्जांपल में अगर आप देखें PHP का हमने स्टार्ट लिया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $x इज इक्वल टू 5। सो दिस इज आवर फंक्शन। क्योंकि अभी तक हमने PHP के फंक्शन नहीं पढ़े, बट हेयर यू कैन सी फंक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं विद दिस कीवर्ड फंक्शन। इसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम, दिस इज द फंक्शन बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर अगर आप लोग देखें, हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, बट वी डिक्लेयर द वेरिएबल ग्लोबली, यानी हमने फंक्शन से आगे इसको जो है ना ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इस फंक्शन को जो है ये वेरिएबल यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है, कि ये हमारे पास $x है। बट एक बात याद रखें कि हमेशा लोकल वेरिएबल जो है इस फंक्शन को नज़र आता है, लेकिन जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, चूंकि ये इस फंक्शन के स्कोप से बाहर है, तो ये हमें एक एरर देगा, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल नॉट लोकल वेरिएबल। ठीक है, सो ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक दिस आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। ओके, इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ओके, जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है
वो हमेशा किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर होगा, लाइक दिस फंक्शन नेम बॉडी एंड दिस इज द लोकल वेरिएबल जो कि बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो है ये डिक्लेयर्ड है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल की थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, PHP यूजेस द ग्लोबल कीवर्ड। जो हमें एरर मिला था यहाँ पे, ये जो हमारे पास एरर देगा, ये यहाँ पे वो एरर हमारे पास ये था कि दिस वाज अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन को नज़र नहीं आया। इसको नज़र आने के लिए हम क्या करेंगे कि वी विल यूज़ द PHP ग्लोबल कीवर्ड। ये ग्लोबल कीवर्ड जो है वो हम वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे। सो हेयर यू कैन सी फंक्शन, अब लिखेंगे जो वेरिएबल्स हमारे पास ग्लोबल डिक्लेयर्ड हैं। सो नाउ हेयर यू विल राइट ग्लोबल x and y and then you will can use and add them, ठीक है, and here you can call this function. So this is called global and local variable। अभी हम इसको रन भी करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास कौन से होते हैं? क्योंकि हमने अभी तक एरेज नहीं पढ़ी, सो इस एग्जांपल को आप अभी स्किप कर दें। PHP द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक हमारे पास वो कीवर्ड है जिसको हम जिस वेरिएबल्स को हम फिर चेंज नहीं कर सकते, लाइक स्टैटिक। यहाँ पे लिखते हैं कीवर्ड इस डॉलर x इज द वेरिएबल नेम, इट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 डिक्लेयर करने के बाद इफ यू मॉडिफाई इट्स वैल्यू बाय incrementing its value by 1, so this would not change the actual value of this static variable. So let's run a simple program that will demonstrate all these three variables. Here you can see, let me make some changes in this file and then save as it with the local and global variable names. Okay, so okay, let me make it a simple variable. Okay, so $a is equal to 10. Okay, if I make it static, okay, it is now static variable, and after declaring it static, let me delete these programs and also this one. Okay, so echo the value of uh, $a is equal to this dot, ताकि ये अपेंड करें, concatenate करें। But after printing this value, I just modified the a with the plus plus symbol. Okay, and again I let me print this value again, Control C। okay, यहाँ पे ब्रेक लगा दें ताकि हमें ये पता चले कि ये दूसरा ईगो है। Why not save as this file with variable -2 name? Okay, now this was the previous file and I made some changes with -2, ये दूसरा हमारे पास फाइल आ गया। Okay, जब मैंने इसको रन किया, so the value of 10 is this and the value of 11 is this. It means that the static variable is modified. Okay, so why it doesn't work? Let me check it कि हमारे पास एरर कहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो बेसिकली एरर नहीं है। एक्चुअली जब हम फंक्शंस में इसका यूज़ करते हैं, अभी हम चेक करते हैं, तो यू विल सी के इसका जो हमारे पास आंसर है वो, लेट मी मेक सम करेक्शंस हियर। $a is equal to, it was 10 and after that it was plus plus, so let me run it again. ओके, ये तो ठीक है, मतलब एज फार एज द कोड इज कंसर्न ये भी ठीक है, द आइडिया ऑफ स्टैटिक इज आल्सो करेक्ट, बट technically if you see, create a function name with the name a,
बी सी, इसके बाद बॉडी है फंक्शन की। चले आप फंक्शंस भी यहाँ इस तरह सीख लेंगे। फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद इफ आई डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल, ओके चले इस कोड को बल्कि यहाँ पे ले आते हैं। इसको कहाँ से कट करें एंड पेस्ट इट हेयर। फंक्शन डिक्लेयर हुआ, इसके बाद इको का कमांड है, ओके, एंड इसके बाद इंक्रीमेंटेशन है, और अगेन यहाँ पे प्लस प्लस है, और अगेन हेयर यू कैन सी द इको। चलिए इस इको को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी कॉल द फंक्शन, अगेन कॉल द फंक्शन। मैंने इसको 2 दफ़ा कॉल किया। अच्छा, ये रन इस तरह होगा कि फंक्शन नेम इज़ ए बी सी, स्टैटिक वेरिएबल $a is equal to 10 एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 10। 10 करने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये हो जाएगा 11। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो हियर you can see I am typing the comment, the value will become 11, ओके। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम ये कॉल हो जाएगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शन पे, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर इसको प्रिंट कर देगा 10 को। यहाँ पे ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये तो एक दफ़ा कॉल हो गया। फिर सेकंड टाइम जब कॉल होगा, तो सेकंड टाइम कॉल होने के बाद रिमेंबर कि जब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप को लगता ये है कि जो ए की वैल्यू है 10, वो दोबारा यहाँ पे प्रिंट होगी 10, बल्कि नहीं, जो प्रीवियस वैल्यू है 11, जो 11 हुई थी, यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी प्रीवियस वाली। ठीक है, यानी चाहिए तो ये था कि ये ए को दोबारा असाइन करता, लेकिन नहीं, ये प्लस प्लस क्योंकि हुआ था तो ये प्रीवियस वैल्यू को करेगा मेंटेन। ओके, लेकिन इसको हम रन करेंगे, फिर मैं आपको एक समझा दूंगा कि ये क्या इसकी वो है। द वैल्यू इज 10 एंड द वैल्यू इज 11। ओके, let me give it a break here so that it is clarified। इसको सेव करें, जाके इसको करें रिफ्रेश। देखिए वैल्यू हमारे पास पहले 10 है, इसके बाद क्या है 11 है, यानी 11 जो है ये हमारे पास ये इंक्रीमेंट हुआ था। जब दोबारा कॉल हुआ तो यहाँ पे 10 यहाँ पे असाइन नहीं हुआ, बल्कि जो 11 की प्रीवियस वैल्यू है वो दोबारा यहाँ पे एज 11 प्रिंट होगी बाय कॉलिंग द सेकंड फंक्शन। इफ आई रिमूव दिस स्टैटिक वेरिएबल, रिमूव करने के बाद क्या होगा, नाउ इट बिकम्स अ लोकल वे। अब ये लोकल वेरिएबल बन गया जो कि स्टैटिक नहीं है, ना ही ये ग्लोबल है, ना ही ये स्टैटिक, इट इज़ अ लोकल वेरिएबल। नाउ you will find some change in the output. It is 10 and 10। 10 इसलिए है कि लोकल वेरिएबल जितना टाइम्स ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इसको असाइनमेंट, ये 10 ए को असाइन होगा ये वैल्यू, एंड आपको हर दफ़ा ये इको में 10 ही मिलेगा। बट इफ़ आई मेक इट स्टैटिक यू विल गेट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू बिकॉज इस प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन रखता है। सो ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ग्लोबल के लिए अब क्या करेंगे कि अगर आप ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, 10 को, लेकिन यहाँ पे आप लिखें कि ग्लोबल $x इज इक्वल टू, या चलिए इसको प्लस प्लस करें, ओके, एंड नाउ कॉल दिस फंक्शन। आपके ख्याल में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन सिंगल टाइम? सो व्हाट शुड बी प्रिंटेड हियर? So let me check it. Is it 11? No. Why it gives me an error? Okay, let me check it. यहाँ पे प्रॉब्लम है।
वेल x नहीं है, ये a है। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। सेव किया, इसको रन किया। Again, it gives me an error. Why not remove this plus plus point and then see कि also चलिए remove करें इसको भी to see what is the exact solution. The value is 10. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि now this is a global variable and it is accessible from here. Okay, it will work like a global variable. ठीक है, इस तरह आपके पास जितने भी functions आएंगी you can make it global और उनको ये visible होगा। ठीक है, so this was today's lecture। जो कि हमारे पास यहाँ पे एरर्स भी आती हैं, समटाइम्स आई मेड अ टाइपो मिस्टेक। सो ये आपके लिए अच्छा है बिकॉज यू कैन सी के वेयर we can find and fix the errors. Thank you so much for listening the tutorial number 2. Inshallah, in the coming PHP tutorial, I will brief you on some more interesting topics. Uh, Thank you so much for listening to this lecture. See you. Allah Hafiz.